اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ایرانیوں کا سالار قارن بن قریان تازہ دم لشکر لے کر ابلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پوری امید لے کر جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے لوٹے گا۔ وہ اپنے لشکر کو دجلہ کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اس نے مزار کے مقام پر لشکر کو دریائے دجلہ پار کروایا اور جنوب میں دریائے موقل تک پہنچ گیا۔ جب دریائے موقل کے پار گیا تو اسے ہرمز کے لشکر کی ٹولیاں آتی دکھائی تھی۔ سپاہی بڑی بری حالت میں تھے۔ قارن نے پہلی ٹولی کو روک کر اور ان کی حالت دیکھ کر کہا، تم پر زرتشت کی لعنت ہو، کیا تم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگے آ رہے ہو؟ ٹولی میں سے ایک سپاہی نے کہا، سپاہ سالار ہرمز مارا گیا ہے۔ دونوں پہلوؤں کے سالار قباز اور انوش جان بھی بھاگ گئے ہیں، وہ شاید پیچھے آ رہے ہوں۔ قارن بن قریان ہرمز کی موت کی خبر سن ہو کر رہ گیا۔ اس نے یہ پوچھنے کی بھی جرات نہیں کی کہ ہرمز کس طرح مارا گیا ہے۔ قارن کا سر جھک گیا تھا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ فارس کے فوجیوں کی قطاریں چلی آ رہی تھیں۔ اپنے تازہ دم لشکر کو دیکھ کر بھاگے ہوئے یہ فوجی وہیں رکنے لگے۔ اتنے میں ہرمز کی فوج کے دوسرے سالار قباز اور انوش جان بھی آن پہنچے۔ انہیں دور سے آتا دیکھ کر قارن نے اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا۔ گھوڑا چل پڑا۔ قارن نے اپنے دونوں شکست خوردہ سالاروں کے سامنے جا گھوڑا روکا۔ قارن نے کہا، میں سن چکا ہوں ہرمز مارا گیا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ تم دونوں بھاگ آئے ہو۔ کیا تم گوار اور اجڑ عربوں سے شکست کھا کر آئے ہو؟ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ تم بزدل ہو اور تم اس رتبے اور عہدے کے قابل نہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے؟ قباز نے کہا، کیوں نہیں چاہتے؟ ہم کہیں چھپنے کے لیے پیچھے نہیں آئے، ہمیں ہرمز کی شیخیوں نے مروایا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلامی فوج کے پاس بڑے ہی قابل اور جرت والے سالار ہیں، لیکن وہ اتنے بھی قابل نہیں کہ ہماری فوج کو یوں بھگا دیتے۔ انوش جان نے کہا، قارن، ہماری فوجی قیادت میں یہی سب سے بڑی خرابی ہے جس کا مظاہرہ تم نے بھی کیا ہے۔ تم نے عرب کے ان مسلمانوں کو اجڑ اور گنوار کہا ہے۔ ہرمز بھی ایسے ہی کہتا تھا، لیکن ہم نے میدان جنگ میں اس کے الٹ دیکھا ہے۔ قارن نے پوچھا، تم نے ان میں کیا خوبی دیکھی ہے جو ہم میں نہیں؟ انوش جان نے کہا، یہ پوچھو کہ ہم میں کیا خامی ہے جو ان میں نہیں۔ ہم اپنے 10-10 12-12 سپاہیوں کو ایک ایک زنجیر سے باندھ دیتے ہیں کہ وہ جم کر لڑیں اور بھاگے نہیں، اسی لیے ہم آمنے سامنے کی جنگ لڑتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب ہماری سپاہ کو پابند سلاسل دیکھا تو انہوں نے دائیں بائیں کی چالیں چلنی شروع کر دی۔ ہماری سپاہ گھوم پھر کر لڑنے سے قاصر تھی۔ یہ تھی وجہ کہ ہمارا اتنا طاقتور لشکر شکست کھا گیا۔ قباز نے کہا، ہمارے پاس باتوں کا وقت نہیں، مسلمان ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ ان کے تعاقب میں مثنہ بن حارثہ 2000 نفری کی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ مثنہ بن حارثہ اسلام کے وہ شیدائی تھے جنہوں نے ایرانیوں کے خلاف زمیندوز جنگی کارروائیاں شروع کر رکھی تھی۔ انہی کی ترغیب پر امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بلا کر ایرانیوں کے خلاف بھیجا تھا۔ ایرانیوں کے تعاقب میں جانا غیر معمولی طور پر دلیرانہ اقدام تھا۔ تعاقب کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اپنے مستقر سے دور ہٹتے ہٹتے ایرانیوں کے قلب میں جا رہے ہیں، جہاں ان کا گھیرے میں آ جانا یقینی تھا۔ لیکن یہ خالد رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کہ ایرانیوں کا تعاقب کیا جائے۔ اس حکم کے پیچھے ایرانیوں کے خلاف وہ نفرت تھی جو مثنہ بن حارثہ کے دل میں بھری ہوئی تھی۔ جنگ سلاسل ختم ہو گئی اور ایرانی بھاگ اٹھے تو خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کا لشکر تھک گیا ہے۔ انہوں نے مثنہ بن حارثہ کو بلایا، کہا، ابن حارثہ، اگر یہ بھاگتے ہوئے فارسی زندہ چلے جائیں تو کیا تم اپنی فتح کو یقینی سمجھو گے؟ مثنہ بن حارثہ نے پرجوش لہجے میں کہا، خدا کی قسم ولید کے بیٹے، مجھے صرف حکم کی ضرورت ہے، یہ میرا شکار ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو جاؤ، 2000 سوار اپنے ساتھ لو اور زیادہ سے زیادہ ایرانیوں کو پکڑ لاؤ اور جو مقابلہ کرے اسے قتل کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے جانباز تھک گئے ہیں، لیکن میں شہنشاہ فارس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم زمین کے دوسرے سرے تک ان کا تعاقب کریں گے۔ مثنہ بن حارثہ نے 2000 سوار لیے اور بھاگتے ہوئے ایرانیوں کے پیچھے چلے گئے۔ ایرانیوں نے دور سے دیکھ لیا کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے تو وہ بکھر گئے۔ انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے گرز اور ہتھیار پھینک دیے۔ مثنہ کے لیے تعاقب کا اور ایرانیوں کو پکڑنے کا کام دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ ایرانی ٹولی ٹولی ہو کر بکھرے، پھر وہ اکیلے اکیلے ہو کر بھاگنے لگے۔ اس کے مطابق مثنہ کے سوار بھی بکھر گئے۔ مثنہ بن حارثہ کو آگے جا کر اپنے سواروں کو اکٹھا کرنا پڑا، کیونکہ آگے ایک قلعہ آ گیا تھا۔ یہ قلعہ حصن المراء کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ایک عورت کا قلعہ تھا، اس لیے اس کا نام حصن المراء مشہور ہو گیا تھا، یعنی عورت کا قلعہ۔ مسنہ نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا کیونکہ خیال یہ تھا کہ ایرانی اس قلعے میں چلے گئے ہوں گے۔ قلعے سے مزاحمت کے آثار نظر آ رہے تھے۔
2 दिन महासरे में गुजर गए तो मुसन्ना को एहसास हुआ कि वो जिस काम के लिए आए थे वो तो रह गया है। मुसन्ना का एक भाई मुअन्ना उनके साथ था। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, मुअन्ना, क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं ईरानियों के ताकुब में आया था और मुझे इस किले ने रोक लिया? मुअन्ना ने कहा, मुसन्ना भाई, मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे कहते कि इस किले को तुम मुहासरे में रखो और मैं ईरानियों के पीछे जाता हूँ। मुसन्ना ने कहा, हाँ मुअन्ना, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। ये किला एक जवान औरत का है और तुम जवान आदमी हो। खुदा की कसम, मैंने किले सर करने वालों को एक औरत की तीखी नजरों और अदाओं से सर होते देखा है। मुअन्ना ने कहा, मेरे बाप के बेटे, मुझ पर भरोसा कर और आगे निकल जा। मुझे थोड़े से सवार दे जा, फिर देख कौन सर होता है, किला या मैं। अगर तू यही बंधा रहा तो भागते हुए फारसी बहुत दूर निकल जाएंगे। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, अगर मेरा दिमाग ठीक काम करता है तो मैं कुछ और सोच कर इधर आया हूँ। मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके नबी हैं कि उसने हमें खालिद बिन वलीद जैसा सिपाह सालार दिया। मदीने की खिलाफत से जो उसे हुक्म मिला था वो उसने पूरा कर दिया, लेकिन वो उस पर मुतमईन नहीं। वो फारिस की शहनशाही की जड़ें उखाड़ फेंकने पर तुला हुआ है। वो मदाइन की ईंट से ईंट बजाने का अज़्म किए हुए है। मुअन्ना ने कहा, अज़्म और चीज है मेरे भाई, अज़्म को पूरा करना बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। क्या तुमने नहीं देखा कि वलीद का बेटा तीर की तेजी से आगे बढ़ रहा है? मेरे बाप के बेटे, तीर भी खता हो सकता है, जरा सी रुकावट उसे रोक भी सकती है। मुसन्ना ने कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि खालिद को वहीं रुक जाना चाहिए जहां उसने फारसियों को शिकस्त दी है? खुदा की कसम, तुम एक बात भूल रहे हो। शहनशाह फारिस को अपनी शहनशाही का गम है और हमें अल्लाह की नाराजगी का डर है। उर्द शेर अपने तख्तो ताज को बचाना चाहता है, लेकिन हम शाहे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन की खातिर लड़ रहे हैं। समझने की कोशिश करो मेरे भाई, ये बादशाहों की नहीं अकीदों की जंग है। हमारे लिए ये अल्लाह का हुक्म है कि हम उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचाएं। हमारा बिछौना ये रेत है और ये पत्थर है, हम तख्त के तलबगार नहीं। मुअन्ना ने कहा, मैं समझ गया हूँ। मुसन्ना ने कहा, नहीं, तुम अभी पूरी बात नहीं समझे। तुम भूल रहे हो कि हमें उन मुसलमानों के खून के एक एक कतरे का इंतकाम लेना है जो फारसियों के ज़ेर-ए-नगी हैं और जिन पर फारसियों ने जुल्म व तशद्दुद किया था। खालिद फारसियों का ये गुनाह कभी नहीं बख्शेगा। वो मजलूम मुसलमान मदीना की तरफ देख रहे थे। मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं फारसियों के ताकुब में नहीं आया। मैं फारिस के उस लश्कर की तलाश में आया हूँ जो हरमस की शिकस्त खुर्दा फौज की मदद के लिए आ रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी कुमक आ रही होगी। मैं उसे रास्ते में रोकूंगा। मुअन्ना ने कहा, फिर इतनी बातें न करो मुसन्ना, मुझे कुछ सवार दे दो और तुम आगे निकल जाओ। ये ख्याल रखना कि फारसी अगर आ गए तो उनकी तादाद और ताकत ज्यादा होगी। आमने सामने की टक्कर न लेना। जा मेरे भाई, मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। किसी भी मौरिख ने सवारों की सही तादाद नहीं लिखी जो मुसन्ना अपने भाई मुअन्ना को देकर चले गए थे। बाज मौरिखों की तहरीरों से पता चलता है कि सवारों की तादाद 300 से कम और 400 से ज्यादा नहीं थी। मुअन्ना ने इतने ही सवारों से किले का मुहासरा कर लिया और किले के दरवाजे के इतना करीब चला गया जहाँ वो तीरों की बड़ी आसान जद में था। दरवाजे के ऊपर जो बुर्ज था उसमें एक खूबसूरत औरत नमूदार हुई। उसने बुलंद आवाज में मुअन्ना से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? मुअन्ना ने उससे ज्यादा बुलंद आवाज में जवाब दिया, हम मुसलमान हैं। हम मैदान जंग से भागे हुए फारसियों के ताकुब में आए हैं। अगर तुमने किले में उन्हें पनाह दी है तो तुम उन्हें हमारे हवाले कर दो, हम चले जाएंगे। औरत ने कहा, ये मेरा किला है, भागे हुए फारसियों की पनाहगाह नहीं, यहाँ कोई फारसी सिपाही नहीं। मुअन्ना ने कहा, खातून, हम पर तेरा एहतराम लाजिम है, हम मुसलमान हैं। औरत पर हाथ उठाना हम पर हराम है, खा वो किलादार ही हो। अगर तुम फारिस की जंगी ताकत के डर से उसके सिपाही हमारे हवाले नहीं करना चाहती तो सोच लो कि हम वो हैं जिन्होंने फारिस की उस हैबतनाक जंगी ताकत को शिकस्त दी है। ऐसा न हो कि तुम पर हमारे हाथों ज्यादती हो जाए। हम इस्लाम के उस लश्कर का हिरावल हैं जो पीछे आ रहा है। औरत ने कहा, मैंने मुसलमानों का क्या बिगाड़ा है? मेरा किला तुम्हारे लश्कर के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। मुअन्ना ने कहा, तुम्हारा किला महफूज रहेगा, शर्त यह है कि किले का दरवाजा खोल दो, हम अंदर आकर देखेंगे। तुम्हारे किसी आदमी और किसी चीज को मेरे सवार हाथ नहीं लगाएंगे। हम अपनी तसल्ली करके चले जाएंगे।
अगर ये शर्त पूरी नहीं करोगी तो तुम्हारी और तुम्हारी फौज की लाशें उस किले के मलबे के नीचे गल सड़ जाएंगी। औरत की तहकुमाना आवाज सुनाई दी, किले का दरवाजा खोल दो। उसकी आवाज के साथ ही किले का दरवाजा खुल गया। मोन्ना ने अपने सवारों को इशारा किया। 300-400 घोड़े सरपट दौड़ते आए। मोन्ना ने उन्हें सिर्फ इतना कहा कि किले की सिर्फ तलाशी होगी, किसी चीज और किसी इंसान को हाथ तक नहीं लगाया जाएगा। मोन्ना का घोड़ा किले में दाखिल हो गया। उसके तमाम सवार उसके पीछे पीछे किले में गए। मोन्ना ने एक जगह रुककर किले की दीवारों पर नजर दौड़ाई। हर तरफ तीरंदाज खड़े थे। नीचे उसे कहीं भी कोई सिपाही नजर न आया। मोन्ना के सवार किले में फैल गए थे। औरत ने मोन्ना से कहा, तुमने ठीक कहा था, मैं फारसियों से डरती हूँ। इस किले में कोई भी ताकतवर लश्कर आएगा तो मैं उसके रहमो करम पर होंगी। मुसलमानों को मैं पहली बार देख रही हूँ। मोन्ना ने कहा, और तुम उन्हें सारी उम्र याद रखोगी। खुदा की कसम, तुम बाकी उम्र उनके इंतजार में गुजार दोगी। मुसलमानों के लिए हुक्म है कि किलों को नहीं, दिलों को सर करो। लेकिन किले वालों के दिल किले की दीवारों जैसे सख्त हो जाएं तो फिर हमारे लिए कुछ और हुक्म है। हम जब उस हुक्म की तामील करते हैं तो फारिस की ताकत भी हमारे आगे नहीं ठहर सकती। क्या तुमने उन्हें भागते देखा नहीं? क्या वो इधर से नहीं गुजरे? कलादार औरत ने जवाब दिया, गुजरे थे। जरा सी देर के लिए यहाँ रुके भी थे। उन्होंने बताया था कि वो मुसलमानों से भाग कर आ रहे हैं। वो 10-12 आदमी थे। मैं हैरान थी कि इतने हट्टे कट्टे सिपाही खौफ से मरे जा रहे हैं। मैं इस पर भी हैरान थी कि वो कौन हैं जिन्होंने फारिस के उस लश्कर को इस कदर दहशतजदा करके भगा दिया है। तुमने जब कहा कि तुम हो वो लोग जिन्होंने फारसियों को शिकस्त दी है तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने किले का दरवाजा खौफ के आलम में खोला था। मैं तुमसे और तुम्हारे सवारों से अच्छे सलूक की तवक्को रख ही नहीं सकती थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि तुम अपने मुताल्लिक जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो। यह खातून मोन्ना को उस इमारत में ले गई जहाँ वो रहती थी। वो तो शीश महल था। उसके इशारे पर 2 गुलामों ने शराब और भुना हुआ गोश्त मोन्ना के सामने ला रखा। मोन्ना ने उन चीजों को परे कर दिया। मोन्ना ने कहा, हम शराब नहीं पीते और मैं ये खाना इसलिए नहीं खाऊंगा कि तुमने मुझे एक ताकतवर फौज का आदमी समझकर खौफ से मुझे खाना पेश किया है। मैं इसे भी हराम समझता हूँ। उस खूबसूरत और जवान औरत ने कहा, क्या तुम मुझे भी हराम समझते हो? उसकी मुस्कुराहट में दावत का तासुर था। मोन्ना ने जवाब दिया, हाँ, मफ्तूहा औरत को हम शराब की तरह हराम समझते हैं। वो उस वक्त तक हम पर हराम रहती है जब तक कि वो अपनी मर्जी से हमारे अक्द में ना जाए। मोन्ना को इतला दी गई कि उसके सवार किले की तलाशी लेकर आ गए हैं। मोन्ना तेजी से उठा और उसी तेजी से बाहर निकल गया। सवारों के कमांडारों ने मोन्ना को तफसील से बताया कि उन्होंने तलाशी किस तरह ली है और क्या कुछ देखा है। कहीं भी उन्हें कोई ईरानी सिपाही नजर नहीं आया था। उस औरत का अपना कबीला था जिसके आदमी तीरों, तलवारों और बर्छियों वगैरह से मुसल्लह थे। उनमें मोन्ना के सवारों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं थी। किले की मालिकन ने उन्हें लड़ने की इजाजत भी नहीं दी थी। इस किले को अपनी इताअत में लेना जरूरी था क्योंकि ये किसी भी मौके पर ईरानियों के काम आ सकता था। मोन्ना ने इधर उधर देखा, वो औरत उसे नजर न आई। मोन्ना अंदर चला गया। औरत ने पूछा, कुछ मिला मेरे किले से? मोन्ना ने जवाब दिया, नहीं, मेरे लिए शक रफा करना जरूरी था और अब ये पूछना जरूरी समझता हूँ कि मेरे किसी सवार ने तुम्हारे किसी आदमी या औरत को या मैंने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? औरत ने कहा, नहीं। फिर जरा सोच कर बोली, लेकिन तुम चले जाओगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। मोन्ना ने पूछा, क्या तुम ईरानियों का खतरा महसूस कर रही हो या तुम्हारे दिल में मुसलमानों का डर है? औरत ने जवाब दिया, दोनों में से किसी का नहीं। मुझे तन्हाई का डर है। तुम चले जाओगे तो मुझे तन्हाई का एहसास होगा जो तुम्हारे आने से पहले नहीं था। मोन्ना ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। वो बोली, तुम अपने फर्ज में इतने उलझे हुए हो कि तुम्हें ये एहसास भी नहीं कि तुम एक जवान आदमी हो। औरत ने कहा, फातिह सबसे पहले मुझ जैसी औरत को अपना खिलौना बनाते हैं। मैंने तुम जैसा आदमी कभी नहीं देखा। अब देखा है तो दिल चाहता है कि देखती ही रहूं। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? मोन्ना ने उसे गौर से देखा, सर से पांव तक, फिर पांव से सर तक। उसे एक आवाज सुनाई दी, खुदा की कसम, मैंने किला सर करने वालों को एक औरत की तीखी नजरों और अदाओं से सर होते देखा है। औरत ने पूछा, क्या तुम होश में नहीं हो? मोन्ना ने कहा, मैं शायद जरूरत से ज्यादा होश में हूँ। तुम मुझे अच्छी लगी हो या नहीं ये बात की बात है। इस वक्त मुझे तुम्हारा किला अच्छा लग रहा है। औरत ने कहा, क्या मेरा ये तोहफा कबूल करोगे? ताकत से किला सर करने की बजाय मुझसे ये किला मोहब्बत के तोहफे के तौर पर ले लो तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा? मोन्ना ने ज़ेरे लब कहा, मोहब्बत। फिर सर झटक कर जैसे बेदार हो गया। कहने लगा, मोहब्बत का वक्त नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। अगर तुम रज़ामंद हो तो पहले अपने सारे के सारे कबीले समेत इस्लाम कबूल कर लो। औरत ने कहा, मैंने कबूल किया। मैं उस मजहब पर जान भी दे दूंगी जिसके तुम पैरोकार हो। 2 मौरखों तबरी और इब्न रुस्ता ने उस खातून का जिक्र तफसील से किया है, लेकिन दोनों की तहरीरों में उस खातून का नाम नहीं मिलता।
शहनशाह फारिस उर्द शेर आग बगूला हुआ जा रहा था। उसे हरमस पर गुस्सा आ रहा था जिसने कुमक मांगी थी। कुमक भेजने के बाद उसे अभी कोई इत्तला नहीं मिली थी कि मैदान जंग की सूरत हाल क्या है। वो दरबार में बैठता तो मुजस्सम अताब बना होता। महल में वो कहीं भी होता तो इस कैफियत में होता कि बैठे बैठे उठ खड़ा होता, तेज तेज टहलने लगता और बिला वजह किसी न किसी पर गुस्सा छाड़ने लगता। उस रोज वो बाग में टहल रहा था जब उसे इत्तला मिली कि कारिन का कासिद आया है। बजाय इसके कि वो कासिद को बुलाता, वो कासिद की तरफ तेजी से चल पड़ा। उर्द शेर ने पूछा, क्या कारिन ने उन सहराई गीदड़ों को कुचल डाला है? कासिद ने कहा, शहनशाह फारिस जान बख्शी हो, शहनशाह का गुलाम अच्छी खबर नहीं लाया। उर्द शेर ने पूछा, क्या कारिन ने भी कुमक मांगी है? कासिद ने कहा, नहीं शहनशाह फारिस, सालार हरमज मुसलमानों के हाथों मारा गया है। उर्द शेर ने हैरत से कहा, मारा गया है? क्या हरमज को भी मारा जा सकता है? नहीं नहीं, ये गलत है, ये झूठ है। उसने गरज कर कासिद से पूछा, तुम्हें ये पैगाम किसने दिया है? कासिद ने कहा, सालार कारिन बिन करियास ने। हमारे 2 सालार क़िबाज़ और अनुश जान पसपा होकर आ रहे हैं। बाकी सिपाह भी जो जिंदा थी एक एक 2-2 करके उनके पीछे आ रही थी। दरिया मौक्कल के किनारे वो हमें आते हुए मिले। उन्होंने बताया कि सालार हरमज ने मुसलमानों को इनफिरादी मुकाबले के लिए ललकारा तो उनका एक सालार खालिद बिन वलीद हमारे सालार के मुकाबले में आया। सालार हरमज ने अपने मुहाफिजों को एक तरफ छुपा दिया था। उन्होंने मुसलमानों के सालार को घेरे में लेकर कत्ल करना था। उन्होंने उसे घेरे में ले भी लिया, लेकिन किसी तरफ से एक मुसलमान सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता आया। उसके एक हाथ में बर्छी थी और दूसरे में तलवार थी। देखते ही देखते उसने सालार हरमस के 6-7 मुहाफिजों को खत्म कर दिया। ऐन उस वक्त मुसलमानों के सालार ने सालार हरमस को गिरा लिया और खंजर से उसे खत्म कर दिया। उर्द शेर का सर झुक गया और वो आहिस्ता आहिस्ता महल की तरफ चल पड़ा। जब वो महल में पहुंचा तो उसने यूं दीवार का सहारा ले लिया जैसे उसे ठोकर लगी हो, और गिरने से बचने के लिए उसने दीवार का सहारा लिया हो। वो अपने कमरे तक दीवार के सहारे पहुंचा। कुछ देर के बाद महल में हड़बोंग सी मच गई। तबीब दौड़े आए। उर्द शेर पर किसी मरज का अचानक हमला हो गया था। ये सदमे का असर था। फारिस की शहनशाही शिकस्त से ना आशना रही थी। उसे पहली जरब रूमियों के हाथों पड़ी थी और फारिस की शहनशाही कुछ हिस्से से महरूम हो गई थी। अब उस शहनशाही को उस कौम के हाथों चोट पड़ी थी जिसे उर्द शेर कौम समझता ही नहीं था। उर्द शेर के लिए ये सदमा मामूली नहीं था। कारिन बिन करियास अभी दरियाए मौक्कल के किनारे पर खैमजन था। उसने वहाँ इतने दिन इसलिए कयाम किया था कि हरमस की फौज के भागे हुए कमांडार और सिपाही अभी तक चले आ रहे थे। कारिन उन्हें अपने लश्कर में शामिल करता जा रहा था। हरमस के दोनों सालार क़िबाज़ और अनुश जान उसके साथ ही थे। वो अपनी शिकस्त का इंतकाम लेने का अहद किए हुए थे। उनके अहद पर कारिन पेशकदमी में मोहतात हो गया था। क़याम के दौरान उसके जासूस उसे इत्तलाएं दे रहे थे कि मुसलमानों की सरगर्मियां और अज़ाइम क्या हैं। इन इत्तलाओं से उसे यकीन हो गया था कि मुसलमान वापस नहीं जाएंगे बल्कि आगे ही आते जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।